میرے آقا سفیروں کی قطار ہے، فتح کی مبارک دینے کے لیے بے چینی سے منتظر ہیں۔ انتظار کرنے دو پارگالی، میں نے بھی بہت انتظار کیا بلغراد کی فتح کے لیے، ان لوگوں کو بھی یہ مزہ چکھنے دو۔ مطرق جی چلو کھیلتے ہیں، میں ہرا دوں گا تمہیں۔ واہ واہ واہ، شہزادہ آ گیا میرا۔ ابھی تو کام کر رہا ہوں میں، تھوڑا انتظار کر لیں، بعد میں کھیلتے ہیں۔ کیا کر رہے ہو تم؟ سبق لکھ رہے ہو؟ استاد نے تمہیں بھی سبق دیا ہے؟ دیکھو میں کیا بنا رہا ہوں، دیکھو غور سے دیکھو۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ آؤ دیکھو، رکو ذرا، اب دیکھو اندر کیا نظر آیا۔ ہاں سمجھ گیا، بابا کی تصویر بنائی ہے تم نے۔ Nel corretto categorio, al sempre candidati uniti in sala per mantenere che vuole loro. Adesso te ben create tu categorio esmanado, تو میں نے اسپریسو میں افطار یاد دیا۔ آپ کی شاندار فتح کی گونج یورپ کے ایک ایک شاہی محل میں سنی گئی ہے۔ وینس اور ترک سلطنت کی دوستی کے معاہدے کو قائم رکھنے کے لیے محصول کے معاہدے پر دستخط کر کے بغیر کسی کے اعتراض کے آپ کے حضور پیش کر رہا ہوں سلطان۔ دیکھ رہے ہیں بلبل خاص نے پھر بولنا شروع کر دیا۔ فرد پاشا سن رہے ہیں؟ آپ نے تو بہت یاد کیا ہوگا۔ آہستہ پاشا، سننا لے کا ہی وہ نہیں سنے گا، گھبراؤ مت۔ میرے آقا، سفیر موچینیگو اپنے ملک وینس کے تجارتی جہازوں کے لیے طرابلس، شام اور اسکندریہ کی بندرگاہوں پر خرید و فروخت کی اجازت کے طلبگار ہیں۔ ٹھہرو پارگالی، میں چاہتا ہوں ظالم شاہ لوئی جو میرے پیغام کا منتظر ہے خالی نہ بیٹھے، سکون سے نہ بیٹھے تخت پر۔ لکھو جلال زادے، شاہ لوئی ظالم اور ایک کافر۔ اس خط کے ذریعے تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ بادشاہوں نے میرے تخت و تاج کی اطاعت کی ہے۔ اس جہاں میں کتنے ہی متکبر حکمران فنا ہو گئے، تم جسم پر تیر کمان تانے رکھتے ہو لیکن ترکوں کا سامنا کرنے سے خوفزدہ ہو گئے۔ نہ وولی نہ اویوال، میرے آبا و اجداد نے پسپا ہونے والوں اور کمزوروں پر وار کرنے کو سختی سے منع کیا۔ گھمسان کی جنگ میں بھی امان مانگنے والوں کو امان دی جائے۔ تو پھر یہ سب کچھ جانتے تھے، مگر پھر بھی کیوں تم نے سلطان سلیمان کے دربار میں آ کر تحفظ کے لیے امان کی بھیک نہیں مانگی؟ ہم نے تمہارے غرور کی وجہ سے بدا پیسٹ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سفیر کو تو دیکھو ذرا، کیسا خوف زدہ ہے، جان نکل رہی ہے اس کی۔ سلطان نے چال ہی ایسی چلی ہے کہ اب سفیر اڑتا ہوا جا کر یہ خبر مخبروں کو بتائے گا۔ تم دیکھنا ہلچل مچ جائے گی یورپ کے محلات میں۔ کسی گدھ کی طرح پھڑ پھڑا کر بہت اونچی اڑان اڑ جاؤ، یا تم سانپ کی طرح رینگتے ہوئے کسی بل میں جا کر چھپ جاؤ، تب بھی یاد رکھنا اللہ کی مدد سے اس دنیا کو تمہارے اس غلیظ وجود سے پاک کر دوں گا۔ میری بات سننے والے میرا یہ حکم اپنے آقاؤں تک پہنچا دیں اور انتظار کریں جب یہ خواب سچ ہوگا۔ والسلام۔ سلطان معظم، شاہ لوئی یہ خط پڑھ رہا ہو جب، کاش میں اس کا چہرہ دیکھ سکتا اس وقت۔ اگر مرد ہے تو جواب بھی مردوں کی طرح ہی دے گا۔ وینس کی خواہشات پر بات کرتے ہیں۔ پارگلی کہہ دو یہ بندرگاہیں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن قبرص کا محصول سونے کے 10,000 سکے ہیں، یہ نہ بھولیں۔ Vi ringrazio a nome di Venezia per la promessa per uso dei porti. شہزادے مصطفیٰ آ رہے ہیں، بابا کے ساتھ مل کر ظالموں کو ختم کر دیں گے۔ بھاگو ظالموں، بھاگو۔ مطرق
Cordiali saluti, sultano. Con questo accordo i nostri rispetti raggiungeranno il picco. मैं बंदरगाहें इस्तेमाल करने की इजाजत देने पर मुमलिकत वेनिस की जानिब से शुक्रगुजार हूँ। दोस्ती का ये मुआहदा बाहमी इत्तेफाक और अमन का पैगाम लाएगा। रूसी सफीर तरातजाक गोबेन मुलाकात के मुंतजिर हैं। वर्रहमी सुल्तान सुलेमा प्रिंस वसीली प्रिस्लोगोन 15वीं कनराई पिस्मो अज़शी चिन्नी बरूची ची पुगु। शहजादे वसीली ने आपकी फतह पर तहनीत भेजी है। सुल्तान सुलेमान की इजाजत हो तो पेश किया जाए। पारगलीन से पूछो इस खत के अलावा भी कोई अर्ज है इनकी। हम जाये को मायूस नहीं कर सकते, सबकी अर्जियां कबूल कर रहे हैं हम। मेरे आका, रूसियों की मुश्किलात को मैं जानता हूँ। तातारियों ने इनकी जिंदगियां अजीरन की हुई हैं। बंदरगाहों के करीब भी नहीं आने देते तातारी रूसी ताजरों को। ठीक ही करते हैं वो। अच्छा खैर, मसाइल छोड़ो, अपनी बात पहुंचाऊं तो। सुल्तान सुलेमान फरमाते सफीर के साथ बहुत अच्छा मुआहदा हुआ सुल्तान मुअज्जम। मेरे आका, माजरत के साथ पूछना चाहता हूँ कि गैर मुल्की ताजरों को बंदरगाहों के इस्तेमाल की इजाजत मिलने से मकामी ताजरों को जो परेशानी। बादशाह, कांटे में चारा लगाए बगैर मछली का शिकार करते देखा है किसी को? मछली कौन है मेरे आका? बड़ी मछली है, बहरे रोम की सबसे बड़ी मछली, रुदोश जजीरा। मुसलमानों के जानी दुश्मन हैं वो लोग। हज पर जाने वालों को बीच समंदर में लूट लेते हैं। मिस्र से आने वाले हर बहरी जहाज पर रुदोशी कजाक हमला करते हैं। वेनिस अपना ये मुआहदा खत्म होने के खदशे से बहरे रोम में हमारा रास्ता नहीं रोक पाएगा। शालोई मेरे बुदापेस्ट आने का इंतजार करता रह जाएगा और हम कब के रुदोश के लिए निकल चुके होंगे। तमाम बुहरे रोम इंशाअल्लाह तुर्क सल्तनत के आगे अपना सर झुकाने पे मजबूर हो जाएगा। पीरी पाशा, तैयारी खुफिया रखी जाए, बहार हम बुहरे रोम में देखेंगे। ये क्या है? शहजादे, थोड़ा काम रह गया है, सब्र कीजिए। हरा दूंगा मैं तुम्हें। आप हरा सकते हैं शहजादे। बाबा भी हरा देंगे। नहीं हरा सकते। हाँ, मैं भी इस मतरक का बादशाह हूँ, समझे आप? बाबा बाबा। मुस्तफा, मतरकची ने ये कहा है मुझसे कि वो भी मतरक का बादशाह है। हरगिज नहीं आका, मेरी क्या मजाल। ये कहा है इसने? फौरन सर कलम करा दो। इब्राहिम जल्लाद को बुलाओ। नहीं, सर कलम मत कराए, इससे कहे मेरे साथ खेले। ठीक है मुस्तफा, चलो अब मतरकची को काम करने दो, सुबह से तुम्हें खिला रहा है। आज दरबार में खासी हलचल रही। अच्छा ये बताओ मतरकची, समंदर पसंद है या जमीन? समंदर मेरे आका, ऊंची लहरों वाला खुला समंदर। लेकिन आका, जहां आपकी रफाकत होगी वही जगह जन्नत होगी मेरे लिए। तो फिर तैयारी करो, इंतजार कर रहा है समंदर। सुंबुल आगा, हरम की क्या खबरें? मेरे आका, हुरम खातून के लिए वालिदा सुल्तान के हुक्म पर एक नया कमरा खास तैयार करा दिया है। वहां मुंतकिल हो गई हैं। तबीबा ने सेहतमंद होने का मुजदा सुनाया है। अच्छा मुस्तफा, आओ तुम्हें एक जगह लेकर चलते हैं। कहाँ बाबा? खुद देख लेना। बाबा मुझे नहीं जाना है हरम, मुझे इन लोगों के साथ यहीं खेलना है। आओ मुस्तफा आओ। मुकर्रब खास, हुरम कमरे खास में मुंतकिल हो गई हैं। मैंने नजर रखी हुई है। उसकी सबसे करीबी सहेली को रख दिया उसके साथ खिदमत गुजारी के लिए। कौन लड़की है? कोई मसला ना हो जाए दोबारा। ओह, बहुत मासूम है।
वो सलमान भी हो गई है। मैंने नया नाम रख दिया है, गुल नेहाल। गुल नेहाल, ताजा फूल। हाँ, रुदोश ऐसा जजीरा है पीरी पाशा कि उसे फतह करना पूरे रोम को फतह करना है। हमारी इजाजत के बगैर जहाज तो क्या चिड़िया भी नहीं गुजर सकेगी। हैरत है बाबा मरहूम ने क्यों इस पर कब्जा नहीं किया, हालांकि यहीं से गुजर के जंग करने गए थे। वो इसलिए मेरे आका, रोदोश और वहां के बहरी कज़ाकों को इस लायक नहीं जाना उन्होंने। अल्लाह जन्नत नसीब करे फरमाते थे, मैं आलम इस्लाम की जंग लड़ने के लिए जा रहा हूं और तुम मुझे मामूली कज़ाकों में उलझाना चाहते हो। जरा कुछ सोचो तो। मैं रुदोश को इस नजर से नहीं देखता पीरी पाशा, मेरी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ है। देखो पारगाली, वेटिकन वाले भी इस जजीरे को मुकद्दस समझते हैं। सेंट जेस के जंगजू इसी वजह से यहां शहजादों की तरह रहते हैं। इस्लाम दुश्मन होने की वजह से ये खित्ता तमाम गैर मुस्लिम हुकूमतों की हिफाजत करता है और ये लोग मुसलमानों के जहाजों पर हमले भी करते हैं। मगर ये कज़ाक सिर्फ और सिर्फ बहरी कमानदार कुर्त ओगलों से खौफ खाते हैं। कुर्त ओगलो मुस्लिहीद्दीन ने उन लोगों को इबरतनाक सबक सिखाया और उनका माल भी जब्त कर लिया। आका रुदोश वाले बरसों से हुक्मरानी कर रहे हैं समंदर पर। वो कोई कानून नहीं मानते, उन्हें सबक सिखाना जरूरी है। एक मसला और है जो मेरे लिए बहुत अहम है। जेम्स सुल्तान के साथ इन जालिमों ने जो किया, उन्हें यरगमाल बनाया, हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया। सुल्तान बायजीद खान को हजारों अशरफिया तावान अदा करना पड़ा और अब जेम्स सुल्तान की औलादों को रहन रखा हुआ है रुदोश में। खानवादा उस्मान से हैं वो रहनशुदा लोग। इस जिल्लत का खात्मा करने की जो भी कीमत होगी अदा करूंगा। रुदोश के लिए कूच की तैयारी करो और बहरिया को मशकों का हुक्म दो। कल मैं जलालजादे से पहला मकतूब लिखवाऊंगा। क्या तैयारी खुफिया रखनी है मेरा आका? फिलहाल तो खुफिया है। वो तमीज और तहजीब से फरेब देने को क्या कहते हैं जालिम लोग? डिप्लोमेसी, सियासत भी कह सकते हैं। डिप्लोमेसी। देखते हैं क्या जवाब आता है मकतूब का। जो भी जवाब आए, मकतूब तो बहाना है, मंजिल बस फतह है, उसी पे नजर है। वालिदाए सुल्तान ने आपको याद फरमाया है मेरे आका। वालिदाए सुल्तान ने याद किया है तो यकीनन कोई अहम मामला होगा। कोई अहम बात है तभी आपने याद फरमाया वालिदा। किसी अहम बात के बगैर भी साथ बैठ सकते हैं माँ बेटी। हुरम खातून कमरे खास में मुंतकिल कर दी गई हैं, आराम से हैं। दौरा कर चुका हूं, देख लिया उसे, अब बेहतर है। और कुछ तो नहीं कहना? खजीना मेरी प्यारी बेटी, मैं चाहती हूँ कि वो भी खुशियां देखे। नौमरी नहीं बेवा हो गई, अब हमें उसकी निस्बत तय कर देनी चाहिए। कोई बात हुई खजीना से? क्या कहती है? कोशिश की थी एक दो बार पूछने की, शर्मा गई। मुझसे इस मौजू पर बात नहीं करती, लेकिन दिल का हाल चेहरे से अया था। वो मजबूर है, कुछ नहीं कहती खुलकर। खजीना मेरी आंखों की ठंडक है। मैं भी चाहता हूँ अपने घर की हो जाए, लेकिन कोई उसके लायक नजर ही नहीं आता वालिदा। मेरे बेटे, मैं जानती हूँ तुम कितना चाहते हो उसे। दुनिया का मगर यही दस्तूर है, उसके लायक को रिश्ता ढूंढना पड़ेगा। इंशाअल्लाह, फिक्र ना करें। शहजादी, वालिदा मेरी शादी कर रही हैं। किसके साथ? आका की मर्जी है, वो जिससे चाहे उसी के साथ करनी होगी। गुलफाम, मैं दोबारा ये नहीं सह सकती। मैं किसी पाशा से शादी नहीं करूंगी, अपनी जान दे दूंगी।
मेरे आका। रुक क्यों गए पारगाली? तो जाओ। सुल्तान आ गए। उन्होंने देख तो नहीं लिया। गुलफाम अब क्या होगा? क्या हुआ? रुक क्यों गए? कहीं मुखल तो नहीं हो गया मैं? हरगिज नहीं आका। मलकुल मौत तो नहीं देख ली? डरो मत, जान की अमान दी। आका दरअसल मैं खोया हुआ था। वालिदा सुल्तान कैसी हैं? पूछने की जसारत कर सकता हूँ? कोई अहम मसला तो नहीं? औरतों के लिए तो मामूली बात भी अहम होती है। हत्ता की पारगाली वालिदा ही क्यों ना हो, ऐसे ही है। खजीना की शादी की फिक्र है। कहती हैं बहुत हो गई, बस अब हो जानी चाहिए। इंशाल्लाह जरूर होगी। अब तुम साज नहीं बजा रहे तो आओ, गौर कर ले रुदोष की सियासत पर। आ जाओ। तुम्हें आक़ाए आज़म का मनसब संभालना मुबारक हो। उम्मीद है अरसे दराज अमन और सलामती से रहोगे। अपने इस्लाफ के नक्शे कदम पर चलते हुए मैं तुम्हारी तरफ सुलह और दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं। इस पयाम दोस्ती पर खुशियां मनाओ और लाजिम है कि फतह पर मुझे मुबारकबाद दो कि नाकाबिल तस्खीर कहा जाने वाला बलगरात मैंने ज़ेरे नगी कर लिया। तुम्हारे खत का असल पैगाम समझ गया हूं सुल्तान सुलेमान। तुम बलगरात की फतह पर मुतमईन होकर बैठने वाले नहीं। खूब जानता हूं अगली फतह की आरज़ू दिल में मचल रही है। दोस्ती के बारे में जो तहरीर किया है तुमने, वो जानकर कुर्तोगलू जितने परेशान होंगे, मैं उतना ही पुरसुकून रहूंगा। क़ज़्ज़ाक़ कुर्तोगलू ने फ्रांस से पलटते हुए रुदोश पर हमला करके मुझे खत्म करना चाहा, लेकिन औरों की तरह वो भी नाकाम रहा। मकतूब की रूह तुमने समझ ली, ये जानकर निहायत खुशी हुई। फतह बलगरात मेरे लिए काफी नहीं, अगली फतह की आरजू है, बल्कि इसका तो मैं खुद से अहद कर चुका हूं। सो तुम भी जान लो कि यह फतह मुकद्दर हो चुकी है मेरी। अला रुदोश की मुहिम पर रवाना होते वक्त भी सल्तनत की अमानत आप ही को सौंपूंगा। बलगरात पर यलगार में यही इत्मीनान था कि यहां तख्त ताज मोतबर हाथों में। ये तो मेरी इज्जत अफजाई है आका। बहुत बड़ा एजाज है कि आपने इस अमानत के लायक समझा मुझे। आका कुछ अर्ज करने की इजाजत है? इजाजत है लाला। आका ये गुजारिश बहुत आजिजी के साथ कर रहा हूं। जी लाला फरमाइए। वालिदा सुल्तान ने मेरे साहबजादे बातुर के लिए एक रिश्ता देखा था, बहुत मुनासिब। आका आप जंग पर गए हुए थे उस वक्त। हाँ ठीक। बरखुरदार बातुर को भी बहुत पसंद आई थी। एक रूसी कनीज थी, नाम था हुरम। हुरम? बेचारा मजनू सा हो गया है उस कनीज के इंतजार में।